Hello everyone, welcome to my channel Physics by Dr. Gill. As I told you that हम फिजिक्स को बहुत ही इजी मेथड से करने की कोशिश करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसमें हम सबसे पहले मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, व्हाट इज मैकेनिक्स, एंड देन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड वेलोसिटी आल्सो. तो आज हम ये चीजें इसमें डिस्कस करेंगे. बिफोर गोइंग टू द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, we must know first what is mechanics. Mechanics क्या है? Mechanics कुछ नहीं है. Mechanics is just if the particle or body or we are moving from one place to another, then the branch of physics in which we study the motion of a particle is called mechanics. Suppose car is moving and we can apply Newton's law of motion or any law of physics, then it is called, that branch of physics is called mechanics. And what is relativistic mechanics? Relativistic mechanics means in this mechanics, particles or bodies are moving with the velocity v. But in relativistic mechanics, particles or bodies are moving with the comparable velocity of c. We can say v is approximately equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the difference between the relativistic mechanics and the mechanics. Now before going further to the relativistic mechanics, we first understand what is frame of reference. Without understanding frame of reference, we can't understand what is relativistic mechanics, because in relativistic mechanics, we are studies the particles which are moving relative to each other. For example, suppose first we will discuss what is frame of reference. Frame of reference. Now, what is frame of reference? Frame of reference means coordinate axis. What is coordinate axis? X, Y, Z. Very simple. Coordinate axis in which we define the position of a particle. Suppose I am standing here and you want to tell me where I am standing, then I can draw one coordinate axis x, y, z, and then we can easily tell I am in, suppose this distance is 5 meter, and I am at 5 meter from origin, and then this coordinate axis is called frame of reference. Frame of reference is again divided into inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Inertial and non-inertial. Inertial means if the frame is moving with constant velocity, then that frame of reference is called inertial frame of reference. If the v is constant, automatically a will equal to 0. Inertial frame of reference is v constant, a is 0. But in non-inertial frame of reference, v is not constant. Obviously, a will not equal to 0. So we will discuss inertial frame of reference in relativistic mechanics, in which particles are moving or bodies are moving comparable to the velocity of light, and velocity v is constant. That frame of reference is called inertial frame of reference. Now we know what is frame of reference. Suppose I am standing on the ground. मैं यहाँ पे खड़ी हूँ. This is the ground and I am walking on the footpath. मैं यहाँ फुटपाथ पे चल रही हूँ. तो फुटपाथ मेरे लिए रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि फुटपाथ तो रुका हुआ है. So I am moving, it means this I am moving frame of reference, while this footpath is rest frame of reference.
एंड नाउ सपोज वन कार इज गोइंग, यहां से कोई कार जा रही है एंड इस कार में, एंड आई एम स्टैंडिंग नाउ हियर, अब मैं यहां खड़ी हूं और कार जा रही है, तो आई एम नाउ रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कार इज मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसी कार में सपोज कोई बैठा हुआ है, तो उस कार के लिए उसके लिए ये जो पर्सन कार में बैठा है, ये इस कार के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सिंपली हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहते हैं जिसमें हम बॉडी की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ we will study what is Galilean transformation equation. First, you must know what is transformation. Transformation is nothing if one coordinate axis is here, or we can say one frame of reference is here and another frame of reference is here. It means it is moving, this frame of reference is moving with velocity v. Or we can say I am standing on the railway station and this frame of reference is train. Here some observer, यहाँ पे कोई observer है, यहाँ पे कोई observer O dash है. This is S dash frame and this is S frame. तो यहाँ पे इस बॉडी के कोऑर्डिनेट्स x dash, y dash and t dash होंगे। कहां से देखने पर, S डैश फ्रेम में जब ऑब्जर्वर देखेगा, या हम कह सकते हैं कि ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन के अंदर जो ऑब्जर्वर्स या जो लोग बैठे हुए हैं, जब वो यहां से देखेंगे तो उनके लिए ये कोऑर्डिनेट्स में मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x डैश है एंड दिस डिस्टेंस इज y डैश एंड दिस डिस्टेंस इज z डैश। और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, उसे ट्रेन की यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या दिखाई देगी, x दिखाई देगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मींस हमें इस फ्रेम के, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें स्टडी करना है, इसे मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स में आपस में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। बिकॉज दे आर रिलेटिव टू ईच अदर, वो एक दूसरे के रिलेटिवली क्या है, कनेक्ट है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सपोज ट्रेन में एक बॉय बॉल से खेल रहा है, तो वो बॉल नीचे जा रही है। अब इस बॉल की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, और यहाँ से रेस्ट फ्रेम से देखने पे डिस्टेंस कितनी है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, दो फ्रेम्स का आपस में रिलेशनशिप। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम। So what is Galilean? G-A-L-I-L-E-A-N. Galilean transformation means, suppose one frame is here, X, not X, it is Y, X and Z. This is S frame of reference, and train is here on the railway track, and it is S dash frame of reference. Now after time t, this train S dash frame will start moving with a velocity v. So after time t, this frame will initially, S frame is here and S dash frame is also coinciding with this frame S. After time t, this frame will reach here. Now this S dash is moving frame of reference. हम इसे और इजीली समझ सकते हैं कि S जो है वो आपका रेलवे स्टेशन है
एंड एस डैश जो है वो ट्रेन है। यहां पर एक ऑब्जर्वर है ओ और यहां पर एक ऑब्जर्वर है ओ डैश, एंड दिस इज मूविंग ट्रेन। ये सीधी है, मेरे से थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन बन गई है, बट ट्रेन इज स्ट्रेट मूविंग इन दी विच डायरेक्शन, द एक्स डायरेक्शन ओनली विद वेलोसिटी v। तो ओ डैश यहाँ पे देखेगा, ओ डैश के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश एंड टी डैश। टी डैश इज द टाइम, दिस इज स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। और ओ से देखने पर उसे कोऑर्डिनेट्स क्या दिखाई देंगे, एक्स, वाई, जेड एंड टी। किसके, सपोज यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट क्या था, इवेंट को हम कुछ भी समझ सकते हैं। सपोज बच्चा जो है बॉल ऊपर फेंक रहा है, बॉल नीचे आ रही है, दैट इवेंट इज हैपनिंग इन द ट्रेन। एक ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा है, वो यहाँ से देखता है, उसको कोऑर्डिनेट्स मतलब यहाँ से एक डिस्टेंस इतनी दिखाई देती है जहां बॉल की है, यहाँ से एक्स डैश दिखती है, यहाँ से वाई डैश दिखती है। कौन से टाइम पे, टी डैश पे। अब ऑब्जर्वर एक कहाँ पे खड़ा है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। रेलवे स्टेशन से जब वो देख रहा है तो उसे बॉल की डिस्टेंस कितनी दिखाई देगी, एक्स। तो इट मीन्स ये डिस्टेंस जो है स्ट्रेट लाइन, इट विल बी एक्स। बट इस यहां से देखने पे दिस विल बी एक्स डैश। इसे दूसरी फिगर में बनाते हैं, बहुत ही नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। स्ट्रेट लाइन, एस फ्रेम, एस डैश फ्रेम, एक्स डैश अगर कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, तो दिस डिस्टेंस विल बी एक्स डैश। अगर यहां से देखेंगे देन दिस डिस्टेंस विल बी एक्स। एस डैश फ्रेम जो कहाँ पे थी, पहले रेस्ट पे थी, तो दिस इज रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट आफ्टर टाइम टी वो कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पहुंच गई एस डैश, तो इट मीन्स दिस डिस्टेंस विल इक्वल टू v इंटू टी। This distance is x dash, this distance is x, and this distance is vt. Now we are interested in finding the relationship between x dash and x. That is called transformation equation. मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और कोई ऑब्जर्वर कहाँ, ट्रेन में, तो दोनों में आपस में जो इवेंट हो रहा है यहाँ पे उसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें हम आपस में क्या रिलेशन है, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। v इंटू टी क्यों लिया हमने ये, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये डिस्टेंस इसने कवर अप कर लिया। तो इट मीन्स फ्रॉम दिस फिगर यू कैन इजिली से दैट x dash is equal to x minus vt. Since the train is moving only in the x direction, so there will be no changes in the y dash and z dash. Y dash is equal to y, z dash is equal to z, and t dash is equal to t, because time is same. Time t is equal to t dash is equal to t. This transformation equation, which tells us about the relationship between the two coordinate axes या x dash, y dash, z dash and x, y, z, सेम इवेंट को एक ऑब्जर्वर देख रहा है, दूसरा ऑब्जर्वर देख रहा है, एक रेस्ट फ्रेम से देख रहा है, एक मूविंग फ्रेम से देख रहा है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसे हम क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नाउ if we are interested in finding the inverse Galilean transformation, then what we will do? अगर सपोज कोई ट्रेन में बैठा है या हम कार में बैठे हैं, कार इज मूविंग फॉरवर्ड, बट हमें क्या लगता है कि सारे ट्रीज सब क्या हैं या बिल्डिंग्स बैक साइड में मूव कर रही हैं। हम अपनी कार के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि कार मूव कर रही है, बट कार की वेलोसिटी और हमारी वेलोसिटी सेम है, तो इट मीन्स हम कार की रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन हमें क्या लगता है कि सारे ट्रीज जो हैं वो सेम वेलोसिटी से बैक साइड में जा रहे हैं। इट मीन्स अगर हम कार में बैठे हैं और हम रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, तो हमें लगेगा कि रेलवे स्टेशन माइनस वी वेलोसिटी बैक पर जा रहा है, तो दैट्स वाई माइनस वी वेलोसिटी से वो कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें रिलेशन निकालना है x एंड x डैश में। नाउ क्या होगा, माइनस v, v इज इक्वल टू माइनस v, देन माइनस माइनस प्लस, देन x इज इक्वल टू x डैश प्लस vt डैश, y इज इक्वल टू y डैश
z is equal to z dash and t is equal to t dash. These are called inverse Galilean transformation equation. तो दिस इज वेरी सिंपल. हमने इजीली क्या निकाल लिया, दोनों में क्या निकाल लिए, रिलेशन निकाल लिए. उसे कहते हैं हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. तो हम कैसे करेंगे, वी विल जस्ट डिफरेंशिएट x dash is equal to x minus vt. We will differentiate x dash with respect to t dash. Then what will be there? Here it will be dx dash upon dt dash is equal to dx upon dt minus v dt upon dt. It will be cancelled out. Dx dash upon dt. Velocity, distance upon time is called velocity. So it means it will be ux dash. It will be ux minus v. Uy dash is equal to uy because there is no change in y direction, and uz dash is equal to uz. This is called velocity transformation equation. And similarly, inverse velocity transformation equation will be ux is equal to ux dash plus v. Again, what is y plus v? Because minus v is equal to here opposite direction, minus minus plus, and uy is equal to uy dash, uz is equal to uz dash. These are the inverse velocity Galilean transformation equation. Now if you are interested in finding the acceleration, then what you will do, you will just differentiate dux dash upon dt dash. Then what will be happen, dux dash upon dt dash is equal to dux upon dt minus dv upon dt. And what is the rate of change of velocity? It is acceleration. Ax dash is equal to ax minus, what will be this? It will be 0. Why it will be 0? Because velocity is constant, and the differentiation of constant with respect to time will give us 0. So it means ax dash is equal to ax. So this is also the proof that in inertial frame of reference, when the frame is moving, the body is moving, yes, a train is moving, that is called frame of reference, with the constant velocity, then acceleration will remain same. Ax dash is equal to ax. That is called acceleration transformation equation. And one interesting thing is here that अगर आपकी फ्रेम y डायरेक्शन में मूव कर रही है, then there will be x dash is equal to x, but there will be the transformation equation in y dash. Y dash is equal to y minus vt. Z dash is equal to z. T dash is equal to t. तो ये ध्यान रखना है कि अगर फ्रेम किस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो v वेलोसिटी से, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस में आएगी, इसमें. तो दिस इज कॉल्ड अगेन सेम थिंग, स्पेस एंड y space, x y z is the space and t is the time. Space and time ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. तो हमने आज क्या पढ़ा, एक तो मैकेनिक्स किसे कहते हैं, मैकेनिक्स इज वेरी सिंपल थिंग. Mechanics in which branch of physics in which we study the particles which are in motion. उसे हम जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है, वो बिग बॉडीज जो किस वेलोसिटी से मूव करती हैं, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. उसे हम जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी करते हैं उसे कहते हैं हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. तो रिलेटिविटी टर्म क्यों आया, क्योंकि इसमें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करते हैं. एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा, बिकॉज वी आर सेइंग दैट इन हियर इट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
तो एक फ्रेम से देखने पर सपोज हम रुके हुए हैं और दूसरी फ्रेम मूव कर रही है, एरोप्लेन मूव कर रहा है या ट्रेन मूव कर रही है, तो हमें कैसा आपस में उनका रिलेशनशिप दिखाता है सेम इवेंट को, कैसे हम डिस्कस करते हैं, उसे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंडर स्टडी करते हैं. So that's all for today lecture. Hope you have understood it properly. So we will meet you in my next lecture. Thank you so much.